Good morning, children. We are starting chapter number 4, Literary Heritage of India. Right. Here we are going to study about different literatures. We are going to know about different literatures which has been written in different languages. Out of that, most important language is the Sanskrit, because Sanskrit is known as the mother language. Right. Because all the languages which are nowadays in use that has been came out of the main language, that is Sanskrit. So this language is used from olden time, right? Earlier the people, when they were not aware about the language, they were using facial expressions, gestures, symbols, and then they started to draw, right? Or by making different sounds to do the communication with other people. But slowly and gradually they started to invent dialect and scripts, right? So over a period of time the scripts led to the development of language. So धीरे धीरे ये पूरा एक लैंग्वेज आया. बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग यूज़ होती रही है, बट आउट ऑफ दैट देन finally Sanskrit is considered as the most important language, right? So lots of languages has emerged and many flourished and some are vanished, right? बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उसमें से कुछ अभी भी है और कुछ लैंग्वेजेस जो पहले बोली जाती थी वो अभी यूज़ में नहीं है, right? So and many great literatures has done in this in Sanskrit, right? Maximum जो ऋषिज है, right, वो उन्होंने जो भी बुक्स लिखे हैं that all have been written in Sanskrit. वो सारे बुक्स हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं. तो संस्कृत was the main language during that time, and it was used from the past and even today also. All the ritual ceremonies which we have to do, as well as whatever the work especially which is related to the religions, that has been done by using the main language Sanskrit. So the book which has been written about the Sanskrit grammar, that is written by Maharshi Panini. Maharshi Panini was a great Sanskrit grammarian. तो ग्रामर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू लर्न एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, राइट? तो उसके लिए एक बुक लिखी गई विच वॉज नॉन एज अष्टाध्यायी. अष्ट मतलब 8 एंड अध्यायी मीन्स अध्याय. तो इस बुक में ग्रामर रिलेटेड 8 अलग अलग चैप्टर्स में उसको डिवाइड किया गया है और सारे बेसिक ग्रामर से लेके पूरा कंसेप्ट उसमें समझाया गया है. एंड दिस बुक वॉज रिटन इन 4th century, राइट? 4th century में ये बुक लिखा गया है. एंड दैट्स वाई संस्कृत इज़ कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, द लैंग्वेज ऑफ सेजेस और द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, राइट? तो संस्कृत इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. और इस लैंग्वेज को आर्यंस की लैंग्वेज, क्योंकि आर्यंस आए उसके बाद ही ये सारी जो वेदास है, वेदांगास है, उसके रिलेटेड जो भी रिचुअल्स है वो सारे लिखे गए हैं. तो संस्कृत इज़ कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस एज वेल एज इट इज़ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ सेजेस, राइट? जो भी ऋषि मुनियों ने जो भी लिखा है वो सारा संस्कृत में लिखा गया है, तो इसलिए इट वॉज नोन एज लैंग्वेज ऑफ सेजेस. और वह उस टाइम में बेस्ट 4 यूनिवर्सिटीज़ थी जो एजुकेशन इम्पार्ट करती थी. देयर whoever students which who were studying over there, they were also learning Sanskrit. So Sanskrit was the main language and it has been accepted by all at the international level that Sanskrit is the best language for the computer use. तो कंप्यूटर में भी संस्कृत की लैंग्वेज है वो बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है, राइट? एंड इट वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी. हर एक के लिए ये एक मेन लैंग्वेज है. सो फर्स्ट द लिटरेचर विच वी हैव टू स्टडी दैट इज़ from Sanskrit, right? So ancient literature, Indian ancient literature that consists of Vedas.
Vedas means knowledge, and this knowledge has been distributed or divided in 4 different Vedas: Rig Veda, Samveda, Yajur Veda, and Atharva Veda. 4 Vedas are there: Rig Veda, Samveda, Yajur Veda, and Atharva Veda. ऋग वेदा इज़ द मोस्ट इंडियन लिटरेचर, राइट. सबसे पहला जो वेदा लिखा गया दैट इज़ ऋग वेदा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस, राइट. और उसके अंदर 1028 वर्सेस है, और ये वर्सेस है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस, राइट. 10 डिवीजन में उसको डिवाइड किया गया है, और मैक्सिमम जो वर्सेस है वो प्रेयर के लिए, गॉड के प्रेयर के लिए यूज़ की जाती है. एंड इवन दीज वेदास गिव द नॉलेज अबाउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द लाइफ, राइट. चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस मैटर्स हो, ये सारी चीज़ें वेदास में डिस्क्राइब की गई है. सेकेंड है सामवेदा. सामवेदा इज द वेदास विच इज़ कंपोज्ड आफ्टर ऋग वेदा. ऋग वेदा के बाद जो वेदा बना गया वो सामवेदा. और सामवेदा वॉज फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस, राइट. जैसे कि संस्कृत के श्लोकास हैं, आप लोग पढ़ते हो ना संस्कृत में, 10th स्टैंडर्ड में भी है, और जब से संस्कृत सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से श्लोकास पहले सबसे पहले आते हैं. तो दैट हैव टू बी हाउ टू रिसाइट दैट, राइट. कोई भी श्लोक है तो उसको कैसे ट्यूनिंग के साथ बोलना है, दैट वी कैन लर्न थ्रू सामवेदा. सो इट इज़ नोन एज द गंगोत्री ऑफ द म्यूज़िक. तो उसको बोला जाता है कि ये म्यूज़िक की गंगोत्री है. थर्ड है अथर्ववेदा. इट डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कारास. तो यजुर्वेदा में रिचुअल्स जो भी होते हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद जो रिलीजियस या संस्कारास के रिलेटेड, राइट, वो कैसे कौन सी चीज़ें करनी है, क्या नियम बनाने हैं, लाइफ हाउ टू लीड द लाइफ, वो सारी चीज़ें यजुर्वेदा में होती है. और फोर्थ है अथर्ववेदा. इट डिस्क्राइब्स अबाउट ऑल द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोज एंड वर्सेस, राइट. वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई है कि यज्ञ का यज्ञ कैसे परफॉर्म करने हैं, कैसे उनकी रिचुअल्स करने हैं, स्तुति होती है, उसमें अलग अलग जो डिविजन्स होता है, दैट ऑल हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन वेदास. नेक्स्ट है वेदास का ही पार्ट है उपनिषद. उपनिषदिक लिटरेचर गिव्स अस ए विविड डिस्क्रिप्शंस एंड एनालिसिस ऑफ. उपनिषद्स में कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? फर्स्ट कि द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना. देन द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट. जीवन और मृत्यु के जो रहस्य है उनको समझाया गया है स्टोरी के माध्यम से. खास करके जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी से बताया जाता है. टेक एन एग्जांपल कि भाई लाइफ एंड डेथ की मिस्ट्रीज के रिलेटेड तो लॉर्ड बुद्धा है, जो राइट, कि लॉर्ड बुद्धा है, महावीर स्वामी है, उन्होंने अपना जीवन कैसे किया, फिर उन्होंने जो उपदेश दिए उसके हिसाब से वो लोग समझ सके कि जीवन क्या है, राइट. इसके अंदर कौन से फैक्टर्स काम करते हैं. और ये यूनिवर्स की बात करें तो जो पूरा पंचांग, आप लोगों को पंचांग तो पता ही होगा, राइट. उसमें आता है ना कि दिन क्या है, घड़ी क्या है, कौन सी डेट है, कौन से वो है, वो सारी चीज़ें. फिर पूर्णिमा, अमावस्या, उसके ऊपर फिर ग्रहों की दशाएं, महादशाएं, वो सारी चीज़ें, पूरा सौर मंडल कैसे काम करता है, उसका रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उपनिषद से मिलती है. थर्ड है मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. मटेरियलिस्टिक मतलब जो लाइफ लीड करते हैं, राइट, जो हम जीवन जीते हैं जिसमें चीज़ों का इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है लाइफ के लिए. और दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स आध्यात्म, राइट, कि जो साधु संत है तो उनकी लाइफ कैसी होती है, एक नॉर्मल इंसान से वो डिफरेंट होती है. तो मटेरियलिस्टिक लाइफ और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच की इंफॉर्मेशन है वो हमें उपनिषद से मिलती है. बृहदारण्य एंड छंदोगया आर द अर्लीस्ट उपनिषदास, राइट. ये उपनिषदास है
वो सबसे पहले लिखे गए। उसके अलावा ऑल द उपनिषदास आर रिटर्न इन द डायलॉग फॉर्म, राइट। एक बोलता है, दूसरा आंसर देता है, तो वो पूरा डायलॉग फॉर्म में बनाया गया है, राइट। एंड दे आर 108 इन ऑल मेंशन्ड इन मुक्तिका उपनिषद। तो ये सारी चीज़ें हैं वो उपनिषद में इंफॉर्मेशंस दी गई है। नेक्स्ट है ब्राह्मणिकल लिटरेचर, राइट। तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर में क्या है कि स्पेशली जो वेदा है, वैदिक लिटरेचर है, उसके ऊपर फोकस किया गया है और उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राइट, जैसे फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ में है, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस हमें ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर में मिलती है। और उसका फर्स्ट पार्ट है अरण्यक्स। अरण्यक्स मीन्स अरण्यस। अरण्यस मीन्स कि ऐसा लाइफ का एक फेज, जैसे कि वर्णाश्रम में 4 वर्ण बनाए गए हैं ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, 4 वर्ण है। उसी तरह लाइफ में भी 4 अलग अलग स्टेज है। तो उसमें जो लास्ट पार्ट होता है कि 1 to 25 ईयर्स से एजुकेशन के लिए है, 25 to 50 ईयर्स है वो अर्निंग के लिए हैं, फिर लाइफ लीड करने के लिए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए। 50 to 75, पहले तो 100 से ज़्यादा एज के लोग रहते थे, तो वो धीरे धीरे वो वानप्रस्थाश्रम वर्ड आपने सुना होगा, राइट। तो लास्ट लाइफ है जो कोई भी इंसान हो, चाहे राजा हो या सामान्य इंसान हो, तो वो अपने टाइम के लास्ट स्टेज में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करके वो लास्ट फेज होता है लाइफ में, उस लाइफ का वो जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। मीन्स स्पेशली आश्रम्स वेर मेड, राइट। ऋषि मुनि के आश्रम्स में जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ धर्म ध्यान करके अपनी लाइफ को लास्ट में जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे वो दूर होके अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए करते हैं। एंड दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी विच वॉज द रिजल्ट ऑफ डीप थिंकिंग। और उसके अलावा इसमें लिटरेचर्स भी बहुत सारे कंपोज किए गए हैं विच इज़ बेस्ड ऑन फिलोसॉफी, लाइफ की फिलोसॉफी के रिलेटेड। और उसका एक है मेन, उसका रिजल्ट है डीप थिंकिंग, राइट। तो इसे बोलते हैं अरण्यक्स। उसके बाद नेक्स्ट है वेदांगास। वेदांगास क्या है कि दैट इज लिटरेचर डील्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, राइट। ये सारी चीज़ें हैं वो रिलीजियस के रिलेटेड है, ओके। रिलीजियस रिचुअल्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे करना है, हाउ टू लीड अ लाइफ, दैन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जो उसके डिविजन्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें वेदांगास में दिखाई जाती है। अब बात करें इम्पोर्टेंट लिटरेचर जो बनाए गए हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट की जो बुक्स बनाई गई, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें रामायण एंड महाभारत, राइट। तो रामायण इज़ द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, राइट। रामचंद्र प्रभु की स्टोरी है जो who was the king of Ayodhya and how to lead the life he has given a concept as a simple man how to lead a life, right। पूरी फैमिली को जॉइंट करके रखना एक दूसरे के लिए, तो जीवन की जो सार है, कैसा एक इंसान को जीना चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन, दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ गिवन बाय लॉर्ड रामा। तो उनका कैरेक्टर पूरा नैरेट किया गया है रामायण में। और दूसरा है कि महाभारत। महाभारत यू नो, राइट, कि महाभारत में स्टोरीज़ है कौरवा एंड पांडवास, राइट। इन दोनों की बोथ आर लिविंग द लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर्स, राइट। कौरवों की लाइफ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, पांडव है वो अपने डिफरेंट रिलीजियस वे पे चलते हैं। तो इन दोनों की लाइफ के बारे में है। फिर उससे ही एक नया कंपोज हुआ श्रीमद् भगवत गीता का। श्रीमद् भगवत गीता है वो डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स पे बना गया है, जिसमें जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है तब अर्जुन को समझाया जाता है सारी चीज़ें, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं वो श्रीमद् भगवत गीता में। और महाभारत की बात करें तो वो सबसे वर्ल्ड का
लार्जेस्ट एपिक है, सबसे बड़ा बुक अगर कोई है तो वो है महाभारत। एंड इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्षा साल्वेशन थ्रू ज्ञान कर्म एंड भक्ति। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता को देखा होगा तो उसमें 18 अध्याय है और हर एक अध्याय में ईश्वर को प्राप्त कैसे करना है, कैसे कर्म करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे ज्ञान लेना है, ये कैसे मोक्ष पाना है, वो सारी चीज़ें श्रीमद् भगवत गीता में समझाई गई है। एंड बोथ द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ इंडियन एंड द लिटरेचर फॉर all the people for and it gives an important message to the people for a long time, right? तो ये दोनों रामायण और महाभारत दोनों की एक अपनी पहचान है और लोगों को समझने के लिए, लाइफ को लीड करने के लिए ये पूरे प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड दे हैव इम्प्लांटेड मोटिवेशनल सीड्स फॉर संस्कारास इन द इंडियंस, राइट? और इंडियन में हमारा जो कल्चर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है संस्कार, राइट? तो जो वैल्यूज़ है, लाइफ की वैल्यूज़, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? हम लोग अपनी लाइफ कैसे लीड करते हैं वो सारी चीज़ें हमें बताती है ये दो बुक है, रामायण एंड महाभारत। महाभारत का ही पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता, राइट? ओके, देन नेक्स्ट है कि संस्कृत लिटरेचर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियसली एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ है। रिलीजियस तो है ही, उसके अलावा हाउ टू लीड ए लाइफ इन वर्ल्ड, राइट, वो भी इसमें दिया गया है। पुराणास के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। द नेक्स्ट इज़ के बहुत सारे ग्रंथास लिखे गए, स्मृति ग्रंथास, राइट, और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं वो भी कंपोज किए गए हैं। उसके अलावा इट डील्ट विथ साइंस एंड फिलॉसफी। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर ले तो वो है कौटिल्यस अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त कौटिल्य का, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, उसका ओरिजिनल नेम था विष्णुगुप्त, राइट? फिर उसमें से चाणक्य बना और चाणक्य के बाद उसका एक और नेम यूज़ किया गया, दैट इज़ कौटिल्य, विच इज़ द बेस्ट बुक ऑफ मैनेजमेंट, राइट? वो मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज, हाउ टू रूल द कंट्री, how to manage, how to lead the life, that information is given in this book of अर्थशास्त्र means economics. Then स्मृति ग्रंथ क्या है कि स्मृति ग्रंथ है वो explain the religious teaching, laws and customs. स्मृति ग्रंथ में रिलीजियस जो टीचिंग है, राइट, धर्म के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझाया जाता है। उसके अलावा लॉज क्या है कि जैसे कि कर्म क्या है, उसका फल क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म का क्या है, कैसे कौन सी विधि करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें और को उन्होंने एलाबोरेट किया है, राइट? अब उसके बाद ये सारे संस्कृत लिटरेचर थे वो हिंदू बेस्ड पे थे, हिंदू लिटरेचर से। अब नेक्स्ट आया है बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, राइट? लॉर्ड बुद्धा ने जो लिटरेचर्स बनाए that are written in the language which is known as पाली। यहाँ पे आपको संस्कृत, प्राकृत, पाली, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में वेरिएशंस मिलेगा, राइट? तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये जो बुक है, जो ये लिटरेचर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। इट इज़ नोन एज त्रिपिटिका, राइट? 3 अलग अलग सेक्शंस में है, सुक्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम्म पिटिका, राइट? तो 3 उसके डिविजन्स है, जिसे सुक्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम्म पिटिका गया है। और दिस स्पेशली पोएम्स एंड ड्रामाज वेर ऑल्सो नरेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, then some of the other books which was written by other authors, that is Band Bhatt wrote the book named Kadambari, Harshcharita, a biography of Emperor Harshvardhan, जो इंडिया का सबसे फेमस जो राजा थे, एम्परर थे, हर्षवर्धन, उसके बारे में एक बायोग्राफी लिखी गई है बाण भट्ट द्वारा, विच इज़ नोन एज हर्षचरिता। अलग बाकी की जो बुक्स है वो है भवभूति की उत्तर रामचरित,
Bhairavi ki Kirtararjuniam. Then Vishakha Datta has written Mudra Rakshasa. Sudra की है मृच्छकटिकम. एंड दांडी की लिखी हुई बुक का नाम है दश कुमार चरिता. राइट, these are the books which is based on political events. Then their characters narrated that characters, all the things have been included here. Then right, so these are the details which you have to study. Second thing, the important part of this chapter is that you have to remind the book with the author. Right, कौन सी बुक कौन से ऑथर ने लिखी है वो याद रखना है इस चैप्टर में. इफ़ पॉसिबल यू कैन मेक ए चार्ट इन 3 कॉलम्स. राइट, कि सबसे पहले लिखना है कि नेम ऑफ द बुक, देन नेम ऑफ द ऑथर, एंड देन यू हैव टू राइट द लैंग्वेज इन विच इट इज़ रिटन. ओके, सो वेरिएशंस विल बी देयर, क्योंकि संस्कृत है वो स्पेशली इट वाज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स. राइट, तो हर एक इंसान की बस की बात नहीं थी कि वो संस्कृत यूज़ कर सके एज अ मदर लैंग्वेज. तो उसमें से एक नई लैंग्वेज हो गई यूज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज. तो संस्कृत लैंग्वेज है, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज है, उसके बाद अलग अलग एरियाज थे, जैसे कि मगध था जो बिहार आज है. तो मगध में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी उसको बोला जाता था मगधी, और आजकल उस लैंग्वेज को बोलते हैं मगी. राइट, तो हर एक रीजन में आप जाओगे वहाँ पे यू विल सी द डायलेक्ट लैंग्वेज. ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं मिलेगा, बट डायलेक्ट लैंग्वेज उस एक एरिया का अलग तरीके से लैंग्वेज होगा. सो lots of variations will be there in different languages. So it is necessary that when you make the chart you have to divide it into 3 parts. First, name of the book, second, name of the author, and the third, in which language it is used. Okay, that kind of questions can be asked in 1 mark. Sometimes if you have to write about the Sanskrit literature, then that type of questions will be in 2 to 3 marks. So it is important that you have to go through it. Then in next video we will discuss about the literature in other language. Good morning children. As we have started chapter number 4 last week, that is literary heritage of India. Right, few points we have discussed in previous video. Now once again I am repeating some of the important point, that is language and literature. Right, importance of language. What is the importance of language? When you want to say something, when you want to express your feelings, then in past time when there were no languages, that time facial expressions, gestures, symbols, drawings and different type of sounds were used in a first form of communication, right, between the people. But slowly and gradually new different languages has emerged. Out of that, Sanskrit is one of the such great language which holds much importance in India. And as it is said that Sanskrit is the language of knowledge, science, religion and philosophy, because whatever we want to do, whatever we learn today, we have lots of languages today that all have been born or that have came from Sanskrit, as the Sanskrit is the mother language of all the languages, right. So wherever the language started to use, that time to Sanskrit is the first language which was used in ancient civilization, right. And although today Sanskrit language is less in use, but still it is used in religious ceremonies, in worshipping and performing different type of rituals, right. So Sanskrit is the first language which we use. So some of the literature, most important literatures has been written in Sanskrit, right.
related to science, technology, rituals, whatever we are using today, right? So Maharshi Panini, though she has written a great Sanskrit, she was known as a great Sanskrit grammarian, and she has written a book on grammar which is known as Astadhyayi, right? Astadhyayi, ast matlab 8, adhyayi means part. So this grammar book divides all the important features of the language with the grammar, that is in this book Astadhyayi. It is a noteworthy book of Sanskrit grammar which was written in 4th century, right, BCE. 4th सेंचुरी में ये बुक लिखी गई है महर्षि पाणिनि के द्वारा, राइट. Good morning, children. As you know, we have started Literary Heritage of India, chapter number 4.